ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग ऑफ स्पेस फिजिक्स। स्पेस फिजिक्स के कुछ ही एमसीक्यूज हैं। दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिससे मैंने कुछ एमसीक्यूज डाउनलोड किए। ये आईजीसीएसई में भी नहीं था, जीएससीएसई में नहीं था, नया चैप्टर है। मोस्ट प्रॉब्ली इतना ज्यादा टेस्ट नहीं होगा, एक एमसीक्यू आ सकता है। लेट्स जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। इट सेज व्हिच रो इन द टेबल करेक्टली लिस्ट्स द गैलेक्सी, अ प्लैनेट एंड अ स्टार। प्लैनेट के सीक्वेंस तुम्हें याद होना चाहिए। अभी मैं नोट शेयर करूंगा, उसमें सारी चीजें बहुत स्पेसिफिक लिखी हुई हैं। जस्ट गो थ्रू दिस विद मी, इंशाल्लाह तुम्हें समझ आएगा। तो गैलेक्सी इज मिल्की वे, सोलर सिस्टम इज नॉट अ गैलेक्सी। Solar system is a part of your galaxy. Your galaxy that you live in is Milky Way. Planet is Earth, and a sun is a star. Moon is a satellite. It's a natural satellite to Earth. ठीक है जी? It's not a star. A sun is a star because it produces its own energy, right? So my answer for this is B. The answers पहले से मैंने mark किए हुए हैं. Let's just go through them quickly. Now, an orbit around the sun of a comet is not circular. Comet generally क्या होता है? एक combination of rock and dust होता है. It says the distance between the sun and the comet varies as shown in the diagram. क्योंकि elliptical है, circular नहीं है, elliptical है, spherical है थोड़ा सा. The distance between the sun and comet varies as shown in the diagram, where in the orbit is the speed of the comet greatest. Now, speed जब greatest होगी जब आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। तो सन की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, जिसके अराउंड सब प्लैनेट्स ऑर्बिट करें, तो सन की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। वेरेवर दिस कॉमेट इज द नियरेस्ट टू सन, उधर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। सो माय आंसर फॉर स्पीड इज आर, एंड वेयर इज इट स्मॉलेस्ट? व्हेन इट इज फर्देस्ट फ्रॉम सन, राइट? फर्देस्ट फ्रॉम सन इज एट पोजीशन पी, तो पी एंड आर। स्पीड इज ग्रेटेस्ट एट आर and smallest at P. So my answer is D. It is only because of gravitational field strength of the sun. Okay. Next is it says इसके 8 MCQs हैं, बस यही हमें मिले। मैं और भी ढूंढ रहा हूँ, जैसे मिलते हैं मैं अपडेट करता। The orbit around the sun of particular asteroid. Asteroid is a dwarf planet. दो तरह के dwarf planet होते हैं, एक white dwarf planet होता है, एक black dwarf planet होता है। White dwarf जो होता है, जो normal planets तुम देखते हो, और black dwarf वो या तो न्यूट्रॉन स्टार होगा या ब्लैक होल होगा। Is not circular. The distance between the sun and asteroid varies as shown in the diagram. The asteroid possesses both gravitational potential energy B and kinetic energy B, right? So kinetic energy is energy possessed due to moving objects, right? Next is what energy takes place, what energy transfer takes place as the asteroid moves from X to Y and as it moves from Y to Z. X to Y move करेगा बेटे, तो it is closing towards the sun. इसका मतलब है gravitational potential energy convert होगी काइनेटिक एनर्जी में। व्हाई? बिकॉज वाई इज क्लोजर टू द सन, तो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो वाई पे ज्यादा होगा, विच इज वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। और वाई से जब एक्स पे आएगा, तो वाई से जब जी पे आएगा, तो द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथेन्स अगेन and kinetic energy और बढ़ जाएगी। So it's again gravitational potential energy to kinetic energy. So when a comet, a planet, an asteroid, whatever it is closest to the sun, the gravitational field strength is the strongest. The kinetic energy of the object is of the comet or the asteroid is the greatest when it is closest to the sun. So it says moving from X to Y, the gravitational field, the gravitational potential energy to kinetic energy is the change, and gravitational potential energy again to kinetic energy. Why? Because the asteroid is speeding up. Next question. Ceres and Vesta. ये Ceres and Vesta दो क्या है? Dwarf planets हैं। इसको हम सन बना लेते हैं, बीच में ये सन है, फर्स्ट करो, दिस इज द सन। अब हमें ऑर्बिट्स बनाने हैं, ऑर्बिट सर्कुलर हो या अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर। द सन ग्रेविटेशनल फील्ड, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड ऑर्बिट ऑफ सेरेस इज वीकर देन दैट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ वेस्टा। तो एक ऑर्बिट, ये दो ऑर्बिट बनेंगे क्योंकि दो प्लैनेट्स हैं, दो प्लैनेट्स हैं, एक सेरेस है और एक वेस्टा है, राइट? तो सेरेस को हम ब्लू से बना लेते हैं। इसको मैं बाहर क्यों बना रहा हूँ? व्हाई? बिकॉज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सेरेस इज वीकर देन दैट, तो सन से दूर होगा, एंड वेस्टा इधर होगा। वेस्टा को ब्लू कर ले, ये इसको कलर कर लेते हैं, राइट? ये वेस्टा हो जाएगा। तो वेस्टा, सेरेस दूर है और वेस्टा करीब है। व्हाई? बिकॉज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द ऑर्बिट ऑफ सेरेस इज वीकर देन द ऑर्बिट ऑफ वेस्टा। वेस्टा करीब होगा, इनर ऑर्बिट में होगा, सेरेस आउटर ऑर्बिट में होगा। हाउ डज द ऑर्बिटल स्पीड? ऑर्बिटल स्पीड इज द स्पीड एट विच अ प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन, ठीक है जी। एंड इट्स ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑर्बिट। एक ऑर्बिट को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है,
वो उसको टाइम पीरियड कहते हैं या पीरियड कहते हैं, ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं. हाउ डज ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सेरेस एंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेरेस एंड इट्स ऑर्बिटल पीरियड कंपेयर विद द ऑर्बिटल स्पीड एंड ऑर्बिटल पीरियड ऑफ वेस्टा. तो सेरेस क्योंकि दूर है तो इसको ज्यादा कवर करना है, इसका सर्कमफेरेंस ज्यादा है, राइट. तो मैं ये देखो येलो से सर्कमफेरेंस इसका सेरेस का हाईलाइट कर रहा हूँ. तो ये ज्यादा दूर है, ऑब्वियसली सर्कमफेरेंस की वैल्यू ज्यादा होगी बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज ग्रेटर, व्हिच इज व्हाई इसकी ऑर्बिटल पीरियड भी ज्यादा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में. So time to complete the orbit obviously would be greater than that of Vesta. तो A आंसर नहीं हो सकता और C आंसर नहीं हो सकता. But then you talk about the orbital speed Vesta की ज्यादा होगी. Why? Because it is closer to the sun. इसका radius, इसका distance from the sun करीब है, इसकी kinetic energy ज्यादा होगी, which is why इसकी speed ज्यादा होगी. So orbital speed of Ceres is smaller than that of Vesta, and the orbital period is greater than that of Vesta because it's greater distance, right? Let's move on to question number 5. It says the sun emits energy in the form of electromagnetic radiation. जब electromagnetic radiation की बात हो रही है तो we talking about GXU VIMR, right? अब sun से generally gamma rays, X rays, UV rays, violet, visible light, infrared, microwave, and radio waves. It says which three components of electro account for almost all of the energy. Almost all of the energy का मतलब है, almost all of the energy का मतलब है ये infrared radiation जिससे heat transfer हो रही है, ultraviolet, UV rays, and visible light, because sun is the only source of light for the earth, right? So my answer is infrared, ultraviolet, visible light. All four options are correct, but almost all of its energy is concentrated in infrared radiation, ultraviolet rays, and visible light. So 5C is the answer. Then you talk about the life cycle of a star. ये light cycle पे मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, but मैं यहाँ पे properly तुम्हें सिर्फ properly बता देता हूँ. नेबुला, वो उसकी डिटेल्स पढ़नी, वहां चले जाना. नेबुला से नेबुला होता क्या है? इट्स अ क्लाउड गैस. देखो यहाँ क्लाउड गैस एंड डस्ट एंड स्पेस, ये सारे फ्यूज हो रहे होते हैं, फ्यूज टुगेदर हो रहे होते हैं, ज्वाइन टुगेदर हो रहे होते हैं. दे कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी. नेबुला जब बन जाता है, नेबुला कोलैप्सेस अंडर इट्स ओन ग्रेविटी टू फॉर्म अ प्रोटोस्टार. सॉरी, माय बैड. दिस फॉर्म्स अ प्रोटोस्टार. प्रोटोस्टार बनता है. प्रोटोस्टार विल कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट and heat up until it becomes this main sequence star. तो ये यहाँ देखो, it continues to contract and heat up until it becomes a main sequence star. तो second part protostar हो गया, उसके बाद main sequence star बन जाता है, main sequence star. जब ये हो गया उसके बाद it expands into a red supergiant. ये continue करता रहता है, it continues to contract and heat up, and it the main sequence star expands into a रेड सुपर जाइंट. इसके बाद आ जाता है रेड सुपर जाइंट, या रेड जाइंट कह लो या राइट सुपर जाइंट कह लो, बात एक ही. देन इट कोलैप्सेस टू फॉर्म टू थिंग्स, इधर अ व्हाइट डॉर्फ जो नॉर्मल प्लैनेट होगा, या एस्ट्रॉइड बनेगा, एस्ट्रॉइड के बाद प्लैनेट बनेगा, या तो ब्लैक डॉर्फ. ये लिखा हुआ है, देखते हैं इसको. सर इट सेज कोलैप्सेस टू अ व्हाइट डॉर्फ, गोज to become a supernova or a neutron star or a black hole. अगर further expansion होती है तो supernova, black hole, neutron star ये black dwarfs कहलाते हैं. ठीक है जी. सो अब लाइफ साइकिल पूछा हुआ है, देखते हैं. सर सबसे पहले तो नेबुला बनेगा, नेबुला के बाद प्रोटोस्टार, मेन सीक्वेंस स्टार, देन रेड सुपर जाइंट, फिर व्हाइट डॉर्फ और फिर ब्लैक डॉर्फ. ठीक है जी, सॉरी डॉर्फ. हाँ जी. अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हेन इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार आर हेवी एलिमेंट प्रोड्यूस. हेवी एलिमेंट्स प्रोड्यूस जब सुपर रेड जायंट एक्सप्लोड होता है और व्हाइट डॉर्फ प्लैनेट बनता है. व्हाइट डॉर्फ प्लैनेट बनेगा, ब्लैक डॉर्फ प्लैनेट बनेगा, राइट. सो इट इज व्हेन अ रेड सुपर जायंट एक्सप्लोड्स देन हेवी एलिमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड. अब वो कहता है, ये लाइफ साइकिल के बारे में क्वेश्चन नंबर 7 है. लाइफ साइकिल के बारे में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा, इसको देख लेना. जस्ट गिव मी अ मिनट. There is sorry, okay. It says the statements J, K, L, and M describe different stages of life cycle of a small star. What in order, first to last, which the stages in which the stages occur. सबसे पहले तो नेबुला बनेगा, मतलब क्लाउड होगा that contains hydrogen, collapses due to gravitational attraction. ये फ्यूज टुगेदर होते हैं. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का मतलब है फ्यूजन हो रहा होता है, राइट.
This takes a lot of this takes a billion of years to form a nebula. नेबुला बनने के बाद सबसे पहले सीक्वेंस हमने यहाँ लिखी हुई है, मैंने मिटा देता हूँ और प्रॉपर से दोबारा समझा देता हूँ. इसको ब्लैक ड्वार्फ करने दो. ब्लैक ड्वार्फ. It says the elements J, K, L, and describe different stages of life cycle of small star. आओ ये sequence देख लेते हैं सब. Cloud containing hydrogen collapses to become, yes, this is nebula. This is the first step. इसको 1 लिख लेते हैं. रेड जाइंट नहीं, अभी नहीं. व्हाइट ड्वार्फ लास्ट स्टेज है. व्हाइट ड्वार्फ इज द लास्ट स्टेज. व्हाइट ड्वार्फ मतलब या तो व्हाइट ड्वार्फ बन जाए, प्लैनेट बन जाएगा, या एस्टेरॉइड बन जाएगा, या फिर ब्लैक होल बन जाएगा, राइट. ये लास्ट स्टेप है. So this is point number 4. This is 4th. Hydrogen undergoes nuclear fusion to produce helium. ये सारा जो है ना प्रोटोस्टार बन रहा है, सीक्वेंस स्टार बन रहा है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही होती है. So which is why this would be the second step, and the third step would be a red giant, and then red giant expand होके या तो white dwarf बनता है, या so it's going to be white dwarf बनता है या black dwarf बनता है. So it's going to be 1, that's J, M, K and L. So my answer is going to be A. अब आ जाओ बिग बैंग थ्योरी. थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी समझा देता हूँ. बिग बैंग थ्योरी क्या मतलब है? 14 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और बहुत बड़े एक्सप्लोजन में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई. जब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होना शुरू हुई तो आहिस्ता 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 विद टाइम, ओवर बिलियंस ऑफ इयर्स, इट स्टार्टेड कूलिंग ऑफ. जब कूलिंग ऑफ स्टार्ट हुई तो डिफरेंट गैलेक्सीज बनना शुरू हुई. तो कहते हैं व्हाट प्रोवाइड्स द एविडेंस. तो फर्स्ट करो ये यहाँ पे हमारा बिग बहुत बड़ी एक बैंग हुआ, और बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुई. जैसे जैसे वो हीट कम होना शुरू हुई, कूल ऑफ होना शुरू हुआ, तो गैलेक्सीज बनना शुरू हुई. तो जनरली अब जब गैलेक्सीज बन रही है ना, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, गैलेक्सीज बनना फॉर्म हो जाएंगी फार अपार्ट एज दे कूल डाउन. अभी इसका मैं एक नोट भेजूंगा, वो नोट प्लीज पढ़ लेना, ठीक है जी. एज इट कूल्स डाउन तो एक हमारी वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द बिग बैंग अकर्ड वो बढ़ता जाएगा. इट सेज what provides evidence for the Big Bang theory? It is the increase in observed wavelength of radiation emitted by distant galaxies. ये बात याद रखोगे. इससे ही रिलेटेड रेड शिफ्ट है. आप जो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा उसको प्लीज पढ़ लेना. बिग बैंग थ्योरी में वेवलेंथ बढ़ती जाती है, डिस्टेंसेस बढ़ते जाते हैं, और इवेंचुअली डिफरेंट गैलेक्सीज बनती जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट. इसका आंसर्स यहाँ गिवन है, सब क्रॉस चेक कर लेना. just go through all of this again. स्पेस फिजिक्स थ्योरी का हैंडआउट भेज रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक, बहुत टू द पॉइंट, वो याद करके